Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again and we continue. Okay, for the past I'm not very sure, maybe 5-6 lectures, I was doing chota problems which were connected to the word and the income of subscription. उसमें जितनी वैरायटी आ सकती थी वो सारी वैरायटी हमने पूरी कर ली है. Today I restart, well not the chapter तो almost खत्म होने आ रहा है, but a full question. Okay, now what do I mean by a full question? जिसमें हम income and expenditure बनाएंगे, जिसमें हम closing balance sheet, opening balance sheet. In fact आज तो ऐसा है कि हमको एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी रेडी रखना पड़ रहा है. कौन सा एक्स्ट्रा अकाउंट? वेल, पहले काम कर देता हूँ. क्वेश्चन दिखाने के पहले उसके लिए जो ज़रूरतें हैं, ओके, जो इस क्वेश्चन की ज़रूरतें हैं और इस सोल्यूशन की ज़रूरत है, वो पहले बता देता हूँ. सो आपको एक क्रेडिटर अकाउंट रेडी रखना है. ओके, ये क्रेडिटर अकाउंट क्या है, क्यों है, उसकी चिंता मत करो. आई ऑब्वियसली विल एक्सप्लेन दैट टू यू. सो प्लीज़ कीप इट रेडी. अप्रॉक्सीमेटली 5 लाइन चलेगा. बाकी कुछ वर्किंग नोट्स है, कुछ कैलकुलेशंस है, जो जैसे मैं पीछे बता दूंगा आप उसको प्लीज़ कॉपी कर लेना. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द फॉर्मेट इटसेल्फ. So it's something like this. Well, there's a lot of things like this. You have a full subscription formula which is above me. Then you have a miscellaneous expenditure के लिए formula. तो उसके लिए हम लोग PTNL लिखते हैं. रेंट के लिए दोबारा एक PTNL है. एंड वेरी डिफरेंट टुडे इज अ फॉर्मूला फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. काफ़ी अलग है. व्हेन आई एक्चुअली सॉल्व इट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम एंड आई एक्सप्लेन इट टू यू, आपको वो फीलिंग आएगी. राइट नाउ तो बता देता हूँ लिखना क्या है, क्यों लिखना है वो बाद में मैं प्रूव कर दूंगा. सो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इन दैट देयर इज ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल plus cash purchase. That's very important. Not just purchase, cash purchase. Then credit purchase. So again, not just purchase, specific कौन सा purchase. And lastly closing stock. We have similar question किया है. ऐसा नहीं कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, definitely किया है. The only difference today is cash purchase अलग है, credit purchase अलग है, sale यहाँ पे है, ना कि बैलेंस शीट में. ओके, ऑलमोस्ट सेम स्टाइल में हमको सेल भी हैंडल करना है. ओके, ये सब रेडी रखना. 2 बैलेंस शीट, वो भी हमेशा की तरह एक क्लोजिंग होगा, एक ओपनिंग होगा.
ओपनिंग अप्रॉक्सीमेटली 7-8 लाइन्स, और बाकी जितनी जगह होगी वो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट को दे सकते हो. आई एम स्टार्टिंग टू रीड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग रीड क्वेश्चन का एंड इवन लॉन्गर एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन के लिए. सो हियर गोस. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब. ओके, मुझे ठीक से याद है, देर वॉज अ मूवी by the name of entertainment, and I guess Akshay Kumar was a part of it. Good film, not bad. Okay, some very unusual dialogues in that, some very unusual type of comedy in that. Nevertheless, अभी promote तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुरानी पिक्चर हो चुकी है. Okay, तो ऊपर दिया है for the year ended 31st March 2017, ऊपर दिया है. ओके, ना वो जो ईयर एंडेड है उससे आपको पता चल जाता है कि करंट ईयर 16-17 होगा. अगेन मैंने लिखा है, ढूंढ लेता हूँ मैंने कहाँ पे लिखा है. हियर एट द बॉटम 16-17, द लास्ट ईयर वॉज 15-16 एंड द नेक्स्ट ईयर इज 17-18. लिख लो, कहाँ ना कहाँ पे तो लिख लो. ओपनिंग बैलेंस शीट का ये डेट है यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट का डेट ऊपर है 31st March 2017. राइट नाउ माई कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी टू शो यू द क्वेश्चन. अगेन सर कौन से पेज नंबर पे है, ये कौन सा क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज ऑलवेज देयर इन द टाइटल, लेक्चर के टाइटल में. प्लीज़ पढ़िए आगे. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2017. देयर इज अ ढंग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ख़त्म नहीं होता. इससे लंबा तो एक टेबल दिया गया है. वो क्वेश्चन के 2 पार्ट है. पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट. द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको किस बात की खोज करनी है. ओके, वेल आपको ना ओपनिंग डे पे, क्योंकि स्टेप 1 वो है, प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. व्हाट डू आई राइट. ओके, एग्जाम्पल. एक्चुअली लेट मी रीड द होल क्वेश्चन एंड देन आई टेल यू. बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज कैश का बैलेंस, दिस विल कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट. देन सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन विच इज 23,250. प्लीज नोट 23,250 आपको मिला ज़रूर है, बट क्या वो मिलना था. अभी मैं ऐसे अजीब भाषा में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पॉइंट पढ़ो जहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर मीनिंग रिसीवेबल, डेट पढ़ लो 1 अप्रैल मतलब फर्स्ट डे. अमाउंट कितना है 23,750. सो दिस टेबल टेल्स यू वेरी क्लियरली दैट ऑन द फर्स्ट डे you were supposed to receive 23,750, not 250. 250 is what you received. 750 मिलना था. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिसीवेबल में हमेशा टोटल आएगा विच इज़ गोइंग टू बी 23,750, विच आई होप आपको मेरे दिखाए जाने के बाद समझ में आ गया. अच्छा, उसके बाद स्टोरी आगे है. सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये स्पोर्ट्स मटेरियल से माइनस हो जाएगा. आपको जो 26,000 दिखता है दैट विच इज़ विजिबल टू यू, दैट इज़ द सेलिंग प्राइस. मार्केट में उतना प्राइस आपको मिला है. नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, इनकम है. जनरल डोनेशन, जनरल है ना, इनकम. डोनेशन फॉर प्राइज फंड. इन दिस प्रॉब्लम देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन पॉइंट इज प्राइज फंड. प्राइज फंड इज ऑलवेज ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइज देने के लिए जो पैसे अलग से रखे हैं उसको कहते हैं प्राइज फंड. बट वो जो फंड होता है, कोई भी स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्लब है, दे डू नॉट कीप दैट मनी विथ देम. वो कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. तो वो एसेट हो जाता है और उस एसेट पे इंटरेस्ट मिलता है. सो प्लीज नोट दैट द इंटरेस्ट दैट यू रिसीव, यू डू नॉट एड इट टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. आपको ये प्राइस फंड में ऐड करना है. इफ़ यू थिंक सर क्या बोल रहे हो, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, द लास्ट 6 to 8 लेक्चर्स में ये मुद्दा फंड का और फंड इन्वेस्टमेंट का मैंने एक्सप्लेन, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल. ओके, एग्जैक्टली इन द टेक्स्ट बुक क्या कहा गया था और किस पेज पे क्या क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके दिए हैं और क्या हमसे पूछा है. एवरीथिंग हैज़ बीन डन. माई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर प्लीज़ पास्ट के लेक्चर्स देखना, देन यू विल अंडरस्टैंड. मतलब थोड़ा और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा. हाँ, तो थोड़ा मैंने ISO बढ़ा दिया. ISO बढ़ाने से ISO, ओके, बढ़ाने से क्या होता है कैमरा से. वेल स्टीवन सर जो थोड़े काले काले हैं ना, थोड़े गोरे गोरे नज़र आते हैं. सो रीडिंग अहेड. डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ये प्राइज फंड में ऐड होगा. इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये प्राइज फंड में ऐड होगा.
मिसलेनियस रिसिप्ट, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, नो कनेक्शन, ये इनकम में आएगा. रेंट एंड रेट्स इज एन एक्सपेंस. फर्नीचर परचेस्ड इज एन एसेट, फर्नीचर में प्लस करूंगा. क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइटम. व्हाट डज क्रेडिटर मीन? सप्लायर. एंटरटेनमेंट क्लब है, इसमें स्पोर्ट्स चलते रहेंगे, तो बैट का सप्लायर है, बॉल का सप्लायर है. टेबल टेनिस अगर आपने कभी बैडमिंटन खेला है, सो दैट शटलकॉक, ओके, इफ पीपल प्ले इट एट लाइक अ प्रोफेशनल लेवल और एकदम अंदाजे से और एक कुछ ज़्यादा ही जोर का अगर पावर शॉट्स मारे तो एक एक गेम में वो ख़त्म हो जाएगा, शटलकॉक ख़त्म. सो यू रिक्वायर समवन जो रेगुलरली उसको सप्लाई करता है, उसको कहते हैं सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल. इन अकाउंटिंग भाषा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल. व्हाट यू सी अबाउट मी इज पेमेंट. सो यू पेड हिम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू पेड हिम. इसका एक अकाउंट सेपरेटली है, आई विल शो यू इन दैट अकाउंट क्या सोचना है. परचेसेस फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल, नाउ प्लीज नोट, ऊपर का क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल एंड दिस परचेस फॉर, व्हाट इज द डिफरेंस? वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. क्रेडिटर मतलब जो उधारी पे आपने स्पोर्ट्स मटीरियल खरीदा, उधारी, क्रेडिट, एंड खरीदा फिर बाद में 1 महीने 2 महीने आफ्टरवर्ड्स यू पेड द मनी. व्हाट यू राइट नाउ सी परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल, दैट इज लाइव पेमेंट. लाइव पेमेंट मतलब अभी खरीदा, अभी बैट लिया, अभी बॉल लिया, अभी बैडमिंटन लिया, अभी रैकेट लिया एंड अभी पे किया. इट इज ऑल कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स मटीरियल. बट पेमेंट का टाइम लाइन अलग होता है. जब क्रेडिटर को आप देते हो तो वो आप डिले करके देते हो, वो क्रेडिट परचेसेस के लिए होता है. और परचेस फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल कैश परचेसेस, अभी खरीदा, अभी पैसे दे दिए. कॉस्ट ऑफ प्राइज इज अवॉर्डेड, यू हैव अ प्राइज फंड, तो उसमें से तो प्राइस देंगे तो फिर ये उसमें माइनस होगा. ये पूरा जो नॉट तमाशा बट ये जो ड्रामा होगा ये पूरा लाइबिलिटी साइड पे होगा. मैच एक्सपेंसेस एक्सपेंस, miscellaneous expenses expense, we have a PTNL for miscellaneous expense and rent. Balance carried down is cash closing. Next page, continuation of the question. Now there is 2 lists given to you, opening and closing. पहले opening पढ़ लेता हूँ because everything in the opening will go to the opening balance sheet. Example, sports material, ये क्या है? ये है opening stock of sports material, opening stock, okay. तो ऑब्वियसली एसेट साइड. फर्नीचर एसेट साइड. प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड. देन वो 5% पे ध्यान रखना क्योंकि उसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट आने वाला है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट. क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल, ये है ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो स्पोर्ट्स मटीरियल इज अ VIP आइटम इन दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो प्राइज फंड. ओके, एक्चुअली इफ यू मार्क, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ना, तो ये प्रॉब्लम को VIP आप मार्क कर लो. क्यों? क्योंकि है VIP. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू फॉर मी टू टीच, फॉर यू टू लर्न एंड फॉर यू टू रिमेंबर. देन सब्सक्रिप्शन. सो ये क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल इट्स अ लाइबिलिटी, बिकॉज क्रेडिटर तो होता है लाइबिलिटी है ना, पेएबल. सब्सक्रिप्शन इन अरियर मीन्स रिसीवेबल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम. प्राइज फंड, दैट्स अ लाइबिलिटी. प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, but price fund is a liability. Any fund is a liability. Rent paid in advance, please note it is not there, dash, तो closing में है, तो बाद में डिस्कस करेंगे. ओपनिंग अभी डिस्कस कर रहे हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी. टुडे इन दिस प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सपेंसेस को मैं कह सकता हूँ सर्वगुण संपन्न क्या एक्सपेंस. एक्सपेंस में क्या खूबी हो सकती है? एक्सपेंस टाइम पे भरा, टाइम के बाद भरा, टाइम के पहले भरा. टाइम के बाद भरोगे तो आउटस्टैंडिंग, टाइम के पहले भरोगे तो एडवांस. मिसलेनियस एक्सपेंस में दोनों खूबियां हैं. कैसे? इफ यू लुक एट व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट, आउटस्टैंडिंग दैट इज अ लाइबिलिटी, भरा नहीं, एंड डाउन पेड इन एडवांस, तो वो तो प्रीपेड हो गया. येस, दैट इज एन एसेट. तो ऑन द फर्स्ट डे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दोनों खूबियां हैं. वो नॉट पेड है और वो पेड इन एडवांस भी है, तो दोनों आ जाएगा. तो इसके लिए फॉर्मूला ज़रूरी है. बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने बेचा उसका बुक वैल्यू 20,000 था. अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट में देखो तो उसको बेचा है 26,000 में. व्हाट डज दैट मीन? आपको नसीब अच्छा है, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट. सो वो प्रॉफिट हमको लिखना पड़ेगा. व्हेन वी टैकल सेल वी हैव टू मेंशन इट.
Depreciation on furniture is provided at 10%. Okay, we'll do that. No problems. Half of the entrance fees is to be capitalized. हो जाएगा, सिंपल बात है, कोई कष्ट की तो बात नहीं है. There are 1440 members, each paying annual 250. Now this helps me and you calculate the receivable for the current year. We have done this many times previously, but I will tell you कि आज की जो situation है इस problem में receivable ढूंढने का, that's a little bit different. I'll show it to you as and when the problem goes ahead. And lastly, please do read the date. Subscription received in advance. Received in advance का मतलब pre-received, not paid. This is a liability. Pre-received. इस साल का सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर में मिला, तो ये होता है लाइबिलिटी. कितना? 7000. और इफ़ यू रिमेंबर आगे जाकर ये जो टी आइटम होता है ना, दिस ईयर्स पेड लास्ट ईयर, दिस ईयर्स रिसीव्ड लास्ट, ये उसमें एडजस्ट हो जाता है. राइट नाउ कैश वन एसेट एंड रिमेनिंग ये जो 1 अप्रैल का लिस्ट है वो या तो एसेट या तो लाइबिलिटी. राइट नाउ विथ मी प्लीज स्टार्ट. सो हियर गोस. एक्चुअली मैं वहाँ पे जाता हूँ तो ना सिंपल हो जाएगा. सो पहले कैश लिखना 24,000, देन सब्सक्रिप्शन था, रिसीव्ड इज 23,250, but the total is 750, so you have to write 23,750. Then you had sports material का opening stock क्योंकि वो first day पे दिया था 20,000. Furniture simple in the list it has been given 2 lakh. ये opening furniture है, beginning furniture. You had price fund investment. price fund अलग है, investment अलग है, वो asset है. In fact इसके ऊपर you have a hidden adjustment, 5% का hidden adjustment. हाँ, तो मुझे थोड़ा उस तरफ जाना है क्योंकि you had opening balance of creditor for sports material 7,000. very important कि where will I write it later. अभी तो हमने liability में लिख लिया, but later इसको कहाँ पे लिखे. I'll obviously show it to you. That is something different. Price fund आ गया which is 60,000. next there was outstanding rent, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, outstanding miscellaneous expense and at the same time वो prepaid भी था. so outstanding rent 3750. this number 3750 ये एकदम चहेता है ये problem में. okay, the problem itself is a little bit confusing and the examiner I presume जानबूझ के उन्होंने ये वाला नंबर 3750 यहाँ पे काफ़ी बार रिपीट किया है, तो मतलब a student can make a mess out of it. don't okay, be with me. हाँ, miscellaneous expenses था लास्ट ईयर का 11,400. देन मेरे पीछे आएगा जो प्रीपेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीपेड है. ओके, वो लास्ट ईयर में प्रीपेड था करंट ईयर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर में प्रीपेड था करंट ईयर के लिए 3750. प्लीज़ राइट. ये मेरे पीछे के लाइबिलिटीज़, मेरे बगल के एसेट्स, क्योंकि ये पूरा लिस्ट ख़त्म हो चुका है. इसको मुझे आपको टोटल करके बताना है कि एसेट का टोटल क्या होगा. हाँ, एंड द लास्ट विच वेंट ऑफ माई माइंड इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. द वेरी लास्ट पॉइंट इन द क्वेश्चन, द वेरी लास्ट पॉइंट. इनफैक्ट आपको दिखा देता हूँ मैं. 7,000 रुपीज़. ओके, हाँ. so that is again last year में received in advance for current. okay, so the year है वो 1670. अब मेरे पीछे आएगा टोटल 331,500 और also the liability side. the capital fund is the difference 242,350. my sincere apologies अगर font थोड़ा छोटा है because the sum has such a lot of things written in it and it makes sense, and in fact I am comfortable when this balance sheet and the above balance sheet जो मैंने अभी भी ट्रांसफ़र किया वो एक साथ में है, तो दिखाने में समझाने में थोड़ी परेशानी कम होती है. नाउ यहाँ पे जो था ओपनिंग में, आई ट्रांसफर्ड एवरीथिंग अबाउ विथ 2 एक्सेप्शंस. वन, वो जो क्रेडिटर है for sports material, how much is that? 7,000. there is
specific account called as creditor, and in that the opening balance on the credit side is 7,000. इसको हमको income and expenditure में we don't have to fit it. Why are we preparing this account separately? If you look at income and expenditure, you will find one point which is credit purchase. To find credit purchase, cash purchase is readily given. क्रेडिट परचेज जो उधारी पे आपने माल डोंट से बट सर कुछ पेमेंट दिया है क्रेडिटर का, बराबर पेमेंट दिया है, कितना खरीदा वो नहीं दिया है. नाउ डोंट से बट सर जो पेमेंट किया है वो ही खरीदा होगा. नो. ओके, ऐसा होता है कि आपने 2-3 महीने खरीद लिए, बाद में पेमेंट एक बार किया, तो द पेमेंट कैन हैव परचेसेस विच आर मल्टीपल, बहुत सारे, नॉट वन ओनली परचेसेस. हमको जानना है हमने क्रेडिट पे कितना लिया. So to understand this item, or rather to find out this item, we require the creditor account. Okay. Again, when I develop it, तो आपको थोड़ा better समझ में आएगा. So I repeat, क्या हुआ? Opening balance I have written in creditors account. इसमें closing balance आएगा, इसमें cash paid आएगा, and very importantly इसमें credit purchases आएगा, which will help me solve my problem. Okay. And one more thing is the stock. ये जो आपको ओपनिंग स्टॉक दिखता है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल का आपके पास एक आई वुडंट से नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बहुत लंबा आपके पास एक फॉर्मूला है, तो उसके अंदर ही यू विल राइट 20,000. ओके, ये हो गई हमारा स्टेप 1 एंड एक्चुअली स्टेप 2 भी, क्योंकि मैंने और आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया एंड वो उसमें काफ़ी मेहनत की हमने, और वही चीज़ फिर हमने ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया. ओके, नाउ अभी जो इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसको हम या तो इनकम करेंगे या तो हम एक्सपेंस में डालेंगे. लेट्स सी. सब्सक्रिप्शन टोटल 372,250. नो प्रॉब्लम्स, लेट्स राइट इट. इन दैट लास्ट ईयर का कितना है? वेल, लुक एट द क्वेश्चन. 23,250. Okay, तो लास्ट ईयर की लाइन में आई विल राइट. एंड द सेकेंड इफेक्ट, देर इज अ फॉर्मूला अबाउट विच सेज ए. सो एसेट साइड पे वो है, बट 750 है. आपको जितना मिला उतना माइनस करना है, और 500 इज रिसीवेबल फॉर लास्ट ईयर. 500, दिस मच इज द कहानी ऑफ लास्ट ईयर. करंट ईयर का आपको मिला 3,36,000 above, but right now that is of no use to you. It will be when we read the information of members. Okay, next year का 13,000. तो चलो नेक्स्ट ईयर में लिख लेते हैं. सेकेंड इफेक्ट वो फॉर्मूला देख लो, एल लाइबिलिटी साइड लिख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस. सो दैट्स एज फार एज सब्सक्रिप्शन इज कंसर्न. मतलब बाकी की स्टोरी जैसे वो घटना घटेगी हम बात कर लेंगे, हम उस पर चर्चा कर लेंगे. विल टॉक ऑन इट. Sale of sports material, please note 26,000 is the sale price, but if you look at the question, which you should, it said somewhere in the center that the book value of sports material sold was 20,000. 20,000 का चीज आप लकी हो, आपने 26,000 में बेचा, तो 6,000 का तो आपको प्रॉफिट हो गया. Where do you write this? Well, in the formula if you notice there is sale of sports material, तो वहाँ पे book value लिखना है. How much is that? 20,000. But 20,000 का चीज आपने 26,000 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ, फॉर श्योर प्रॉफिट हुआ. तो अबाउट मी प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26 माइनस 26,000. दिस इज द रिपीटेड कहानी, कोई नई कहानी नहीं है ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ओके, ये एसेट साइड पे नहीं हुआ है क्योंकि द स्पोर्ट्स मटेरियल इज एन आइटम विच इज कंज्यूम्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक एसेट है. ओके, सो ये यहीं पे माइनस हुआ. नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस है, दैट्स सिंपल. उसको एक लाइन खाली रखना प्लीज, लीव वन लाइन ब्लैंक. जनरल डोनेशन, डोंट लीव एनी लाइन ब्लैंक, बस लिख लो, इट्स एन इनकम. ओके, 20,250.
डोनेशन फॉर प्राइज फंड, इफ यू शुड, प्राइज फंड आपको वहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। प्राइज फंड में जो भी प्राइज फंड कमाता है या प्राइज फंड के लिए जो पैसा आता है, जैसे ये डोनेशन, ये इसी में ऐड होता है, स्पेसिफिकली इसी में ऐड होता है। अगर कोई खर्चा हो जाएगा तो हम माइनस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इट सेज इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट माई सेल्फ, यही प्राइज फंड का पैसा जब इन्वेस्ट किया गया, इट अर्नड इंटरेस्ट। तो उसका जो सादा हक होता है ना, वो प्राइज फंड का ही होता है। यू कान राइट इट एनीवेयर एल्स, सो इट इज एडिड इन द प्राइज फंड। 1500, सो प्लीज कीप इन माइंड, आपने इन्वेस्टमेंट किए, वो कहाँ पे था, वो एसेट साइड पे आपको दिखेगा 60,000, बट यू हैव रिसीव्ड 1500। ओके, बाकी आई टेल यू, बाकी की स्टोरी ना जैसे ही टाइम आएगा तब बता देता हूँ। देन कम्स मिसलेनियस रिसिप्ट, वो रिसिप्ट साइड पे लिख लो, आप इनकम साइड पे लिख लो, मिसलेनियस रिसिप्ट्स जस्ट अबाउट मी 1700। ओके, सो वी हैव डन वन साइड विच इज द रिसिप्ट साइड। अब पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। रेंट एंड रेट्स, इट्स राइट, रेंट एंड रेट्स। यू हैव अ फॉर्मूला, ओके, एकदम दूर है, 48,750। नेक्स्ट फर्नीचर परचेस्ड, आपको जहाँ पे फर्नीचर लिखते हैं विच इज़ द एसेट साइड, वहाँ पे जाना पड़ेगा। नो परचेस्ड, आई गेस 40,000, तो टोटल आ जाएगा 2,40,000। So here above 2,40,000. Next, very important, creditor for sports material. If you read it like this, payment to creditor for sports material, it's a payment, पैसा दिया है। Where is this creditor? Well, this creditor is here. When you pay this creditor, it's a person. That creditor is debit the receiver. Therefore, the payment comes on the debit side. Debit the receiver. 61,000 का payment. So you don't have to write this in the income and expenditure or the balance sheet. ये actually अलग है। इसमें से कुछ आंसर आने वाला है, वो जब आ जाएगा तब बता दूंगा मैं आपको। अभी के लिए तो आई अंडरस्टैंड थोड़ा रहस्य की बात है। परचेसेस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये कितना है, 10,000। ये क्या है? परचेसेस, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, पैसा दिया। कैश परचेसेस, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, पैसा दिया। सो कैश परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000। ओके, क्रेडिट परचेज आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा बट वो अकाउंट से आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्राइजेस अवॉर्डेड, वो कहाँ से अवॉर्ड करते हैं? प्राइज फंड में से, तो प्राइज फंड में से माइनस कर लेते हैं। सो ऊपर, ओके, माइनस प्राइजेस अवॉर्डेड 20,750। ओके, सो दैट इज डन। उसके बीच में जो गैप है वो गैप रखना कोई इट्स नॉट नेसेसिटी, बट वहाँ पे एक एडजस्टमेंट आने वाला है विच आई विल शो यू इन सम अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे होता है डोंट वरी, हाँ, बिकॉज प्लस माइनस में प्लस पहले करो और यू डू माइनस फर्स्ट, इट डजेंट मैटर, यू विल गेट द आंसर करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट, मैच एक्सपेंसेस, so there's nothing connected to match expenses, you can simply write it 35,150. next, miscellaneous expenses, तो वो है ऊपर the first item 1,50,000 and this is cash balance 134, cash balance 134,050. Right about receipt and payment is done. After that comes a list. In that list what do you get, वो पढ़ने में पता चलेगा, but you may have a 1st April का list which we have done and now 31st March. If you look at the first item, sports material का opening 20,000 लिखा, but जो closing है ना वो कहाँ पे लिखे? Well, look at the formula, उसमें आपको closing stock नज़र आएगा 25,000. फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, यू कैंट सॉल्व इट नाउ, ठीक, बाद में आंसर आएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे है? वेल, एसेट साइड पे, अबाउट
25,000. Okay, so I do understand that the prize fund का आंसर पहले ही आ चुका है. डोंट वरी, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन कि वो आंसर 56,250 क्यों है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ, उसका एनिमेशन में आई एम गेसिंग थोड़े असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊंच नीच हो गए. ओके, देन देर इज फर्नीचर 2 लाख. अच्छा, दैट्स इट. फर्नीचर का 2 लाख है, बट वो ओपनिंग था. क्लोजिंग का क्वेश्चन मार्क है, वो हम ढूंढेंगे. जैसे वी विल मैनेज द डिप्रिसिएशन वी विल डू दैट. ओके, देन कम्स 5% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट. एट द बिगिनिंग इट इज 60,000. एंड में कुछ नहीं है, मतलब है, क्वेश्चन मार्क है, वो ढूंढना है हमको. सो डोंट वरी, वो भी आ जाएगा. देन कम्स क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल. ओके, नाउ होल्ड ऑन. प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इज हैविंग अ हिडन एडजस्टमेंट. चाहे तो अभी कर सकते हैं हम लोग. एग्जाम्पल, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे किस बात का हिडन एडजस्टमेंट है? इफ़ यू डू एन इन्वेस्टमेंट you should be getting interest. if you say, जो गलत नहीं होगा, देखो ना सर, ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 1500 पहले से ही है. सो फिर चक्कर क्या है? देखो, चक्कर कुछ नहीं है. पहले मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि द इन्वेस्टमेंट इज 60,000. 5% अगर आप कैलकुलेट करो कि आपको इंटरेस्ट, हाउ मच शुड बी योर total interest, then you will notice 60,000 into 5% into 12 months, पूरे साल का 3,000. Did you receive 3,000? No. I guess so ना, क्लियर होना चाहिए. आपको नहीं मिला तो मिला कितना? 1,500, because that is what you have written already. तो 3,000 पे तो अपना हक बनता है, हमको बस 1,500 मिला. तो मिलना कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिलना कितना है? That is called as the receivable. And it is of this receivable, which is 1,500, we have a hidden adjustment. It is of this receivable. हाँ, तो पहले तो आप वो लिख लेना, और उसके बाद में लिखना कहाँ पे है, पहले वर्किंग नोट लिख लेना. वेल, आपको ये जो ऊपर प्राइस फंड दिखता है, वो प्राइस फंड के अंदर आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, रिसीवेबल वाला. रिसीवेबल, रिसीव तो ऐड किया है प्राइस फंड में, बट यहाँ पे 1,500 and the outer column 60,500. This is first effect of the receivable. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे है? ये पहले बताया मैंने. प्राइस फंड के अंदर जो भी वो प्राइस फंड कमाता है, टूर्नामेंट फंड कमाता है, ओके, कंप्यूटर फंड, लाइब्रेरी फंड, बिल्डिंग फंड कमाता है, उसमें ऐड होना चाहिए. तो वो जो एक लाइन आपको खाली दिख रहा है, उसी में हमने ऐड किया interest receivable on price fund investment 1,500, and therefore you get this 56,250. तो obviously वो स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, बट अभी आ जाएगा. सो राइट नाउ, ओपनिंग प्राइस फंड, डोनेशन प्लस interest received plus prizes awarded minus, and lastly interest receivable, which gives you a total of 56,250. okay, so then obviously you get the explanation कि 56,250 कहाँ से आया. but ये this was one point which is quite different when it comes to this particular solution. The entire explanation of price fund and price fund investment. okay, you are not supposed to write this interest as an income. क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट कमाया गया है एक फंड पे, तो वो फंड का अधिकार इस इंटरेस्ट पे होता है. तो आप वो इनकम साइड पे नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट डू दैट. ओके, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ डिस्कशन तो वो हो गया. उसके बाद क्या है? उसके नीचे है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल. देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस. हाउ मच इज दैट? 7,000. बट ओपनिंग बैलेंस तो हमने लिख लिया. अभी हमको क्लोजिंग बैलेंस डिस्कस करना है. हाउ मच इज दैट? 14,750. क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखे? वेल, इफ यू नोटिस द अकाउंट ओपनिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग इज ऑन द डेबिट साइड. 14,750. ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट.
ओपनिंग बैलेंस शीट में था, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में होना चाहिए. सो इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट राइट अबाउ यू सी क्रेडिटर फॉर वो प्राइज फंड के ड्रामा के पहले क्लोजिंग बैलेंस. सो 14,750. राइट नाउ दिस पर्टिकुलर अकाउंट, विच पर्टिकुलर अकाउंट, ये जो मेरे पीछे है, ओके, वो जैसे ही टैली होगा तो उसमें हमको एक यूजफुल आंसर आएगा. ओके, नाउ व्हाट इज दैट यूजफुल आंसर, वो थोड़े टाइम में आई विल टेल यू. वो बिकॉज ऑर्डर में जा रहा हूँ मैं. राइट नाउ आई जस्ट शोड यू द टू व्हाट यू कॉल इफेक्ट्स फॉर द क्लोजिंग बैलेंस. देन subscription in arrear. Now this subscription, which is 23,750, this is opening. Closing is not mentioned. Closing का हमको क्या करना है, जैसे ही इसके आगे there is a members information, वो I will cover it up, then I will be able to explain to you कि भाई कितना है on 31st of March. Okay, price fund 60,000, ये ऑलरेडी लिख लिया हमने. क्लोजिंग ऑलरेडी फाउंड आउट 56,250 समथिंग. ओके, काफ़ी मेहनत करने के बाद में हमको तो ये क्वेश्चन मार्क एक मिल गया. बाकी एक एक करके आ जाएगा. रेंट पेड इन एडवांस, वी डिड नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग बट वी डू हैव इट एट द एंड 3750. दिस इज विच ईयर्स रेंट, ये अगले साल का रेंट है. ओके, तो जो रेंट का फॉर्मूला है, उस रेंट के फॉर्मूला में नेक्स्ट ईयर के लाइन में आप लिख लो 3750. सेकेंड इफेक्ट इज ए एसेट साइड, बिकॉज दिस इज प्रीपेड, तो ये ऊपर आ गया. प्रीपेड रेंट 3750. ओके, नाउ यही चीज थोड़ा नीचे देखना, outstanding rent. Please note, this is 3750. Sir, same. No. The previous one was paid for the next year in advance. This 3750 was not paid in the last year. We make an assumption कि अगर आप रेंट देखो, कहाँ पे देखो, ये मेरे पीछे 48,750 का आपने रेंट दे दिया है. Cannot you pay 3750? Why not? 48,000 is a big amount. 3,750 is a very smaller amount. So in last year's line, we assume that the payment has been done. 3750. And just to tell you कि outer column में जो answer है is 41,250. The second effect of 3750 is on the liability side. And अगर आप notice करो, outstanding rent क्या करना है, ये पे कर दिया तो आप माइनस कर लो इसको. 3750 आउटर कॉलम में नील, यू डोंट हैव टू राइट दैट, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं. तो पुराना हिसाब, ये आई हैव मेंशन दिस मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली, पुराना हिसाब क्लियर हो जाता है. ओके, तो ये तो हुआ रेंट के बारे में. इससे तो और बुरी हालत मिसलेनियस एक्सपेंसेस में है. अगर आप ये देखो, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का 11,400, वी मेक एन अजम्पशन कि आपने वो पे कर दिया. वाई डू आई डू दैट, कि मतलब सर ऐसे हम कर सकते? नहीं. आप अगर ध्यान दो, आपने कितना मिसलेनियस एक्सपेंसेस भरा, 1,50,000. उसमें 11,000 भरने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है. तो आई रिपीट, ये हमारा अजम्पशन है कि हमने ये पे कर दिया 11,400. एंड सेकेंड इफेक्ट इज ऑन द लाइबिलिटी साइड. तो वो जो आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का पुराना, वो पेड हो गया, क्लियर. ओके, तो पुराना हिसाब हमने क्लियर कर लिया. बट क्या करें, ये हिसाब कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलते ही जाता है. तो इफ़ यू पे अटेंशन, ओपनिंग क्लियर हो गया बट क्लोजिंग में नई मुसीबत आ गई. 20,100 करंट ईयर का, यू हैव नॉट पेड 20,100 करंट ईयर का. आई रिपीट, you have not paid, तो वो payable हो जाता है. तो in the formula, the alphabet P stands for payable. You write 2,100. The second effect is L, okay, for liability. Liability में फिर से लिखेंगे
Outstanding miscellaneous expenses, the year is the current year, 20,100. ओके, तो ये नया है. नाउ मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैंने कहा था ना, उसमें दो गुण हैं, वो नहीं भरा और वो पहले से भरा भी है. Again, what do I mean by that? Let me show you. So if you look at the next line, miscellaneous expenses paid in advance 3750. Last year में you paid an advance for the current year. This in a solution is called as this year's paid last year. So it comes in the item T, this year's paid last year, and it is having a second effect in A for asset. Okay, my wordings in this style is not obviously good, but वहाँ पे लिखा गया है A for asset. तो एसेट साइड पे जो ऑलरेडी प्रीपेड है उसके अंदर आपको एडजस्ट करना है, और वो इट्स नो लॉन्गर पेड इन एडवांस. ओके, कभी ना कभी तो एडवांस का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, सो इट्स नो लॉन्गर पेड इन एडवांस. हाँ, बट कहानी तो कभी ख़त्म नहीं होती है. ओके, ये लाइक सास बहू की सीरियल है, चलती ही जाती है हर साल. फिर आपने एडवांस दिया 4250, ये वाला 4250, दैट इज़ फॉर द अपकमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर. आई रिपीट, अपकमिंग ईयर मीनिंग नेक्स्ट ईयर. ओके, तो नेक्स्ट ईयर में लिख लेते हैं 4250. द आंसर ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज 1,58,200. डोंट फॉरगेट सेकेंड इफेक्ट देना है, क्योंकि आपने अभी नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया तो वो भी प्रीपेड हो गया. आप या तो लिख सकते हो पेड इन एडवांस, और यू कैन राइट प्रीपेड like you always do whenever you pay for the upcoming year. So above me, miscellaneous prepaid expenses 4,250. Okay, great. ख़त्म नहीं हुआ. ओके, मैं से बता रहा हूँ, वो जो ओपनिंग क्लोजिंग था ना, वो हमारा कुछ हद तक पूरा हो गया. क्वेश्चन सेज बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड. प्लीज़ नोट, वो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है. देयरफॉर वी गॉट द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस विच वॉज द प्रॉफिट. नेक्स्ट, depreciation on furniture. Okay, 10%. In such a big problem, this is one thing which is okay, reasonable. Furniture में आपको 10% का depreciation करना है. 24,000 outer column. Second effect, expenditure side पे. Second effect, expenditure side पे. So at the very bottom of the page, 24,000. Next. Please read. Half of the entrance fees is to be capitalized. Again, I will not, कोई लंबा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, कोई वायदा देने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी हो जाएगा. एंट्रेंस फीस में से आप माइनस कर लो 20,000. So outer column 20,000, and the second effect goes to capital fund plus. Obviously, you know, there is such a lot of content, मतलब लिखने के लिए ये पूरा भर गया है. यू कैन प्रिपेयर इट ऑन अ डिफरेंट पेज, नो प्रॉब्लम्स, ताकि कंफर्टेबली आप लिख सको. ऑलमोस्ट एट द एंड. देयर आर 1,440 मेंबर्स. ओके, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 250. ओके, तो इतने लोग आते हैं, और ये सभी लोग हमको पैसा देते हैं. अच्छा, कितना पैसा देते हैं? लेट्स सी कितना पैसा देते हैं. ओके, सो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमको मिलना चाहिए इज दिस. व्हाट इज दैट? 3,60,000. डिड वी रिसीव फॉर द करंट ईयर 3,60,000? नो. इफ आई शो यू द क्वेश्चन, जो काफ़ी टाइम पहले चला गया. इफ यू लुक अबाउ 16-17 के लिए यू गॉट 3,36,000. यू गॉट 3,36,000. तो आप उतना निकाल लो, बिकॉज इट्स रिसीव्ड. ओके, दैट मीन्स 24,000 रिसीवेबल होना चाहिए. एक्चुअली नहीं, अगर ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम होता ना जो ये नहीं है, तो 24,000 करेक्ट होता था. बट यू हैव टू रिमेंबर विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ओके, अदरवाइज ये जो ऑपरेशन चल रहा है ना, इसमें गड़बड़ हो जाएगा. यू हैव टू रिमेंबर कि 3,36,000 is received during the current year, but you did receive part of the amount in the last year, because therefore you have something called as subscription
रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ पे है? अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में 7,000 आपको दिखता है, ये नहीं, यहाँ पे 7,000, 7,000, वो भी तो करंट ईयर के लिए आपको मिला था। तो करंट ईयर का 3,36,000 ऑन टाइम एंड 7,000 बिफोर टाइम you have received, very important, what you have received, okay? तो मतलब 24,000 भी like pending नहीं है, 7,000 और मिला है हमको, yes. So if you read that, no, received in 16-17, okay, received for in 15-16. So how much is receivable, my dear? The end, the very end, 17,000. अगर ये 17,000 नहीं आएगा तो कहते हैं ना 17 पे खतरा, तो ये क्वेश्चन के सोल्यूशन पे तो डेफिनेटली खतरा मंडराएगा। 17,000 is what is receivable, which I hope you understand, and this is what I have to write as receivable ऊपर। सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली एसेट साइड पे मैं दे दूंगा, तो मुझको देने दो, ये ऊपर है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो दिस इज अ लिटिल बिट, आई एम नॉट सेइंग यूनिक, ओके, बट येस ये रेगुलर प्रॉब्लम्स में हमने देखा नहीं है कि हमको लास्ट ईयर का भी याद रखना पड़ेगा, बिकॉज टेक्निकली इट इज़ रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, ओके। सो आई होप दैट 17,000 ये जो ऊपर आया आपको समझ में आया। नहीं आया तो आप प्लीज़ रिवाइंड कर लो, प्ले कर लो, रिवाइंड कर लो, प्ले कर लो, यू विल अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन, एकदम थोड़ी नॉट अजीब परिस्थिति बट काफ़ी अलग। हाँ, ओके। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद एक्चुअली यही 7,000 के बारे में लास्ट का पॉइंट दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द लास्ट ईयर, आपको करंट ईयर का 7,000 मिला, विच फाइंड्स अ प्लेस इन द टी ऑफ सब्सक्रिप्शन which is 7,000, and the outer column answer is 3,60,000. The second effect is on the liability side, तो वो एडजस्ट हो जाएगा अगर आपको ऑब्वियसली ना इट्स इतना बस स्टॉप नज़र आता है वो, या ट्रेन का प्लेटफॉर्म इतनी गर्दी है वहाँ पे, 7,000 एडजस्ट हो गया क्योंकि वो इट्स नो लॉन्गर इन एडवांस, इट्स नो लॉन्गर इन एडवांस। हाँ, बिफोर आई गो अहेड, एक हमारा रफ वर्क, वन ऑफ माई रफ वर्क इज इनकम्प्लीट। वाई इज इट इनकम्प्लीट? बिकॉज द अबव अकाउंट इज नॉट येट completed. If I do complete it, which I should, I'm not saying if I do, the debit is heavy, 75,750, and in the credit you get an answer. How much is that? 68,750. What is it? Very important. At the beginning of the problem, I explained to you that why is this creditor account being prepared? हमने उधारी पे कितना स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा वो हमको पता ही नहीं है, हमको पता नहीं क्योंकि दिया नहीं है। हाँ, तो दैट इज क्रेडिट द गिवर, दैट क्रेडिटर हैज गिवन अस स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट पे, सो दैट इज द क्रेडिट परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। वी विल पिक दैट अप, यू हैव टू प्रिपेयर, एंड टेक्स्ट बुक में इट्स सॉल्व्ड लिटिल डिफरेंटली, इट्स सॉल्व्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल था, सो इट्स बेटर कि मैं आपको डेबिट क्रेडिट्स में समझा दूँ, बिकॉज दैट इज देन विजिबल टू यू। This 68,750 will go to my formula of sports material, तो वहाँ पे मिसिंग है, and then 20 minus 20 plus 10 plus 68,750 minus 25,000, 53,750. That is the consumed amount, sports material consumed. We have done sports material consumed, stationery consumed on multiple occasions, बहुत बार, but that was at a simple level. ओके, सिंपल। अभी ये थोड़ा डॉक्टरेट लेवल पे है, ओके, तो दैट इज हाउ इट हैज़ टू बी मैनेज्ड। व्हेन इज दिस थिंग क्रेडिट परचेसेस बीइंग वरीड अबाउट? व्हेन यू आर डीलिंग विद क्रेडिटर्स गिवन इन द प्रॉब्लम, ओके। वी हैव डन द एंटायर प्रॉब्लम, वी हैव रेड इट, जितना हो सकता था डेबिट क्रेडिट हमने कर दिया है। अब हमको बेसिकली टैली करना है, तो क्यों ना करें। तो डेबिट का टोटल आपको आएगा, ओके, थोड़ा पीछे चला जाओ तो 312,350, 4,07,950, दैट्स हैवी, दैट तो सरप्लस तो आ ही जाएगा आपको। 95,600 सरप्लस को यहाँ से आप पिकअप करो, कैपिटल फंड में आप ऐड करो, कर देते हैं जी। तो ये घने जंगल में, ओके, राइट अबाउट द कैपिटल फंड आंसर, विच इज द एडिशन ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स, इज 3,57,000
950 एंड देन द टोटल, वेल कर लेते हैं, क्यों नहीं, 4,62,050, that and this number should be the same, which it is the same. Okay, so maximum of the problem went well, just besides the glitch जहाँ पे वो प्राइस फंड का आंसर पहले से ही आ गया और फिर हमको I had to explain to you कि आंसर ऐसे कैसे आया है. That's just an animation glitch, nothing else. Okay, question and the solution, extremely important. Will it come for the एग्जामिनेशन? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इतना तो आपने बड़ा पाप नहीं किया है कि इतना बड़ा सोल्यूशन आना चाहिए, बट इन द क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सपेंसेस कैसे हैंडल करना है, प्राइस फंड कैसे हैंडल करना है, सब्सक्रिप्शन विच इज लाइक पुरानी पुश्तैनी बात हो चुकी है, स्टिल इट कम्स अ लिटिल बिट डिफरेंटली, कैसे हैंडल करना है, दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन इज गुड फॉर, गुड practice for. I hope all of this is understood by you, and if it has been understood by you, please do definitely like the lecture. उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. ओके, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा आपका, क्योंकि ये सारी चीज़ों का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो ज़्यादा दूर नहीं है, आई विल शेयर इट विथ यू, माई टीम विल शेयर इट विथ you. Okay, that is it. If there are doubts, there is a possibility, definitely there will be doubts, please use the comment section below this lecture and post your doubts. If you have suggestions, please do. Okay, nobody is perfect, I am not perfect, my team is not perfect, we will do our best to rectify, to incorporate the suggestions that you give us. My request, please share the lectures with as many as possible. Okay, लिंक को लिंक कहा जाता है क्योंकि वो लिंक होना चाहिए. ओके, तो अगर आप कड़ी बन जाओ मेरे लिए ताकि दूसरा कोई लिंक हो सके ये चैनल के साथ में, इट वुड बी अमेजिंग. टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल ज़रूर रखना. टेक केयर ऑफ़ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स. इफ़ पॉसिबल, डू स्टे इनडोर्स, स्टे सेफ. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस.